Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Bless you, Jesus. Praise you. Hallelujah. Wonderful Jesus. Praise your holy name. Praise your holy name. Praise your holy name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह. धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. 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 धन्यवाद 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 धन्यवाद. Lord, we bless your holy name. Lord, we magnify you. You are so good. You are so wonderful. You are worthy of all our praise. You are worthy of all our gratitude and appreciation. There is none like you, Lord. There is none besides you. You alone do wonders in heaven above, upon the earth and beneath the earth. How magnanimous is your name, Lord. Hallelujah. We congregate to glorify you. We congregate to sing your praise. Father, from all over India, around the world, we gather here on this social media, Lord, just to let you know that we love you. And Lord, we are so appreciative for your grace, for your kindness, for your mercy, and your divine protection during these precarious times that have come upon the earth, Lord God. Hallelujah. Your name is pavilion to our soul. Your name is a fortress, refuge, and a hiding place. Lord, we hide in your name. We hide ourselves in you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. We lean on you, Lord Jesus. Hallelujah. Lord Jesus, you are mighty. Hallelujah. You are mighty, Lord Jesus. Hallelujah. Mighty, mighty Lamb of God. Hallelujah. Slain from the foundation of this universe. We glorify you. तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Bless you, Lord. Hallelujah. सब मेरे संग मिल के गाएं. तारीफो खुदा के बर्रे की, तारीफो खुदा के बर्रे की, तारीफो खुदा के बर्रे की, तारीफो खुदा के बर्रे की. मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है, जिंदा है. मेरी नजात का चश्मा जिंदा है, जिंदा है, वो जिंदा है. तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है. तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है. तेरे लहू से मिली मुझे माफ़ी है. तेरे लहू से मिली मुझे माफ़ी है. तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है. तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है. तारीफ़ो खुदा के बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की, तारीफ़ो खुदा के बर की. हालेलुया. प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं. हम तेरे नाम की महिमा करते, तेरी स्तुति करते हैं. जीवित यहोवा, हालेलुया, लश्करों के खुदावंद, हम तेरे आगे सजदा करते हैं. तेरे नाम की बड़ाई करते हैं, तेरे नाम की सिताइश करते हैं. हालेलुया, हालेलुया.
हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तेरे नाम की महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। एक्सक्यूज मी। हालेलुया। तेरी महिमा हो, महिमा हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। Lord, we call upon your presence to come. We call upon your holy presence, your sacred anointing to come now, Father, upon me, that I bring your message to your people, that I say what you say, Father, that I shut up when you say shut up. Father, visit with fresh anointing, visit your people with new favor, renewed mercies, for your mercies are renewed every morning. Hallelujah. Visit your people with your renewed mercies. I draw the hedge of the blood of Jesus over everyone that is connected, everyone that is watching right now. Father, I even bring their houses, their homes, their families, their household under the blood of Jesus. Father, if anybody is sick or ailing or in any kind of trouble, problem, Father, I pray that you will stretch forth your hand. अपने हाथ को बढ़ा खुदावन, अपने जलाली हाथ को, और अपने लोगों को छू। मैं तेरा खून तेरे लोगों के ऊपर छिड़कता हूँ, तेरे मसा को, तेरी हजूरी को खोलता हूँ। प्रभु, यदि कोई किसी किस्म की समस्या में है प्रभु, प्रॉब्लम में, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अपना अनुग्रह रूपी हाथ बढ़ा और छू खुदावन। तेरे नाम की, तेरे जलाली नाम की महिमा हो, तेरे जलाली नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। इतने सारे दिन मैं अपने इन लॉज़ के घर में था, और अभी मैं अपनी वाइफ के इन लॉज़ के घर में आ गया हूँ। हालेलुया। तो आज जो संदेश आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ, मैं कुछ और मनन कर रहा था, लेकिन प्रभु ने मेरे दिल में डाला कि मैं स्वर्गदूतों के विषय में आपसे कुछ बातें करूँ। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द angels of the Almighty God, holy angels, good angels, loyal, faithful angels. I am not going to talk about the dark, fallen, depraved angels, but I am going to talk about loyal, holy, faithful angels of God, who continually usher in His presence and who always hearken unto His bidding, and they perform His word. हालेलुया। उन स्वर्गदूतों के विषय में आज मैं आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूँ, जो यहोवा परमेश्वर के पवित्र दूत हैं, और जो यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और यहोवा परमेश्वर के वचनों को पूरा करते हैं। हालेलुया। आइए सबसे पहले हम एक वचन पढ़ें। अपनी बाइबल खोल के निकालिएगा आप सभी। ज़बूर 103, साम भजन संहिता 103, उसका 20 वचन मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। साम 103 वर्स नंबर 20। परमेश्वर का दास राजा दाऊद क्या लिखता है यहाँ पे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी महिमा हो यीशु मसीह। परमेश्वर का दास राजा दाऊद देखिए क्या लिखता है। राजा दाऊद कहता है, प्रेज द लॉर्ड यू हिज एंजल्स, यू माइटी वंस हु डू हिज बिडिंग, हु ओबे हिज वर्ड। क्या कहता है परमेश्वर का दास राजा दाऊद? राजा दाऊद कहता है, प्रेज द लॉर्ड, याह की स्तुति करो। किन्हें कहता है? यू हिज एंजल्स। हालेलुया। मलाख, हिब्रू वर्ड है मलाख, और ग्रीक वर्ड है एगलोस। कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर के दूतों, यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। किंग डेविड, राजा दाऊद परमेश्वर के दूतों को मशवरा दे रहा है। क्या कह रहा है? हे यहोवा के दूतों, यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। आपको मालूम, यहोवा के दूत निरंतर अनंतता से, जब से यहोवा परमेश्वर ने सृजा है, यहोवा परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड यू हिज एंजल्स, यू माइटी वंस, तुम जो महान सामर्थी हो। हालेलुया। अपनी सामर्थ से सामर्थी नहीं है एंजल, यहोवा के बल, यहोवा के तेज,
यहोवा की शक्ति, यहोवा के पराक्रम से पराक्रमी है स्वर्गदूत। और क्या कहता है परमेश्वर? यू माइटी वंस हु डू हिज बिडिंग। जैसे कोई शब्द यहोवा परमेश्वर के मुख से बाहर आता है, यहोवा परमेश्वर के दूत यहोवा परमेश्वर के उस वचन को पूरा करने में उसी समय लग जाते हैं। हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर आदेश देता है, उसी क्षण यहोवा के दूत यहोवा के आदेश को पूरा करने में लग जाते हैं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ें, इब्रानियों की पत्री निकालिएगा जल्दी से, हिब्रूज, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय, इब्रानियों की पत्री का 2 अध्याय निकालिए। हालेलुया। इब्रानियों 2 अध्याय, इब्रानियों 2 अध्याय का 2 वचन। हालेलुया। यहां पे लिखा, फॉर सिंस द मैसेज स्पोकन थ्रू एंजल्स वॉज बाइंडिंग एंड एवरी वायलेशन एंड डिसओबीडियंस रिसीव्ड इट्स पनिशमेंट। मैं सिर्फ 2 वर्ष तक ही स्टिक करता हूं। यहां पे लिखा है, पुराने अहदनामे में जो वो परमेश्वर के दूतों ने बांटा। हालेलुया। किसने डिलीवर किया? परमेश्वर के दूतों ने बनी इस्राएल को। तो वचन में लिखा, जो उनके मुख से यहोवा परमेश्वर का पैगाम डिलीवर किया गया, इट वॉज बाइंडिंग, इट वॉज इररिवोकेबल, इट कुड नेवर बी वायलेटेड। यहोवा के दूत जो पैगाम आपके पास लेके आएंगे, उसे कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। वो स्वर्ग में मान्य पैगाम है। हालेलुया। दूत यहोवा की आज्ञा को मानते हैं और जो दूत कहते हैं वो मान्य होता है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गदूत हमेशा यहोवा परमेश्वर की डिक्री को लागू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे पहली चीज जो आपके जीवन में स्वर्गदूतों को, आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि आप अपने जीवन में से स्वर्गदूतों को कैसे भगा देते हो। बहुत से मसीह लोग कैसे भगा देते हैं स्वर्गदूतों को। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत से देशों में यीशु मसीह का वचन लेके गया, 100 से ज़्यादा देशों में, बहुत सी कलीसियाओं में, पूरे विश्व में घूमा। मैंने बहुत कम मिनिस्ट्रीज या चर्चेस देखी हैं जो स्वर्गदूत के विषय में लोगों को सिखाते हैं। परमेश्वर के एंजल्स के विषय में कलीसिया को ज्ञान नहीं है। आपको मालूम, वचन में लिखा है, द एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स अराउंड द राइचियस। मैंने आपको बताया, जो ज़दिक होता है, जो धर्मी है, जो सीधे मार्ग पे चलता है, उसके इर्द गिर्द यहोवा का दूत एनकैम्पमेंट करता है। खनाओ हिब्रू वर्ड है जिसका मतलब होता है एनकैम्पमेंट, जहां आर्मी आके ठहरती है। स्वर्गदूतों की छावनी आती है वहां पे, एक धर्मी प्रभु के जन के इर्द गिर्द। हमने देखा कैसे अग्निमयी रथ की छावनी थी। मैंने वचन बताया था आपको, एलीशा परमेश्वर के भक्त के इर्द गिर्द। आपके इर्द गिर्द दूत हैं। कभी आपने बातें की उनसे? आप अपने कुत्ते से भी बात करते हो, बिल्ली से भी बात करते हो, लेकिन कभी दूतों से नहीं की। आपको मालूम, मेरे 3 बेटे हैं। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, अभी भी छोटे हैं, छोटा वाला अभी 5-6 साल का है, बड़ा वाला 12 इयर्स है, लेकिन जब ये छोटे थे, बहुत छोटे, 2-2, 3-3 साल के, मैंने तीनों के जीवन में देखा है कि ये अवेयर थे एंजेलिक प्रेजेंस के। दे यूज्ड टू सी एंजल्स। समटाइम दे वुड जस्ट कीप ऑन लाफिंग, लुकिंग इनटू द विंडो और लुकिंग इन द सीलिंग। एक आपकी लाइफ में पीरियड होता है जब आपको एंजल्स की अवेयरनेस होती है, लेकिन ये संसार आपको एजुकेट करता है, स्लोली अपने सिस्टम में ढालता है, और आप सो कॉल्ड मैच्योरिटी हासिल करते हो। और परमेश्वर की ये चाइल्ड लाइक बातें, यीशु मसीह चाइल्ड लाइक फेथ कहता है, चाइल्डिश फेथ नहीं कहता है। चाइल्ड लाइक फेथ और चाइल्डिश फेथ दोनों में बड़ा फर्क है। परमेश्वर आपको चाइल्डिश बनने के लिए नहीं, चाइल्ड लाइक बनने के लिए बुला रहा है। मैंने आपको बताया वो इनोसेंस। हालेलुया। तो एंजल्स को आप ऑफेंड करते हो कैसे? अपने मुंह के शब्दों के द्वारा। यू स्पीक वर्ड्स दैट कैन अपसेट द एंजल्स एंड दे कैन लीव यू। ऐसे शब्द बोलेंगे, स्वर्गदूत आपको छोड़ के चले जाएंगे।
आपको मालूम दूसरी चीज़ जो एंजल्स को अपसेट करती है, मैं आज आपको एंजल्स की थोड़ी सी एक्टिविटी, असाइनमेंट, नेचर, बिहेवियर के विषय में बता रहा हूँ, छोटा सा एक संदेश है ये। दूसरी चीज़ जो एंजल्स को अपसेट करती है वो है आपका अनबिलीफ, अविश्वास। आपके अविश्वास के कारण स्वर्गदूत आपको छोड़ के चले जाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं, या रूठ भी जाते हैं, या आपके इर्द गिर्द नहीं रहते बिकॉज ऑफ द अनबिलीफ। मैं एक आपको वाक्य देना चाहता हूँ, बाइबल में से निकालिए मेरे संग आप जल्दी से सभी। सबसे पहले निकालिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय निकालिए, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक, और उसका आप निकालिए पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, और मैं उसके 8 वचन से आपके लिए जल्दी से पढ़ता हूँ। कुछ स्क्रिप्चर हम पढ़ेंगे लूका 1 के 8 से। यहाँ लिखा है, Once when Zachariah's division was on duty that he was serving as priest before God, he was chosen by Lot, according to the custom of the priesthood, to go into the temple of the Lord to burn incense. And when the time for the burning of the incense came, all the assembled worshippers were praying outside. The angel of the Lord appeared to him. ये व्यक्ति है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता, और यीशु मसीह के रिलेशन में है। ये बुजुर्ग है, इसकी खासियत क्या है? ये सादिक है, जदिक है, यहोवा के मार्गों पे सीधा चलने वाला भक्त है। तो जब ये परमेश्वर की हजूरी में आराधना कर रहा है, इसकी हाई प्रीस्ट की ड्यूटी आती है, इसकी ड्यूटी आई इंसेंस की, आराधना कर रहा है, तो क्या लिखा है? एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर्ड टू हिम स्टैंडिंग एट द राइट साइड ऑफ द ऑल्टर ऑफ द इंसेंस। हालेलुया। एक इंसेंस है, एक जगवेदी है जहाँ पे इंसेंस जलाई जाती है, इनसाइड, जहाँ पे प्रार्थनाएं ऑफर की जाती हैं। एक गोल्डन ऑल्टर है, 3 ऑल्टर हैं, मैं फिर किसी समय आपको बताऊंगा। अर्दन ऑल्टर, द ऑल्टर मेड बाय स्टोन, एंड द गोल्डन ऑल्टर। ये एक सीक्वेंस है गोल्डन ऑल्टर तक पहुंचने का। तो लिखा है वो धूप जब जला रहा था, when Zechariah saw him he was startled and gripped with fear। जकरिया नबी ने एक एंजल को देखा, एक महाप्रतापी एंजल था खड़ा, उसको देख के डर गया और भय उसके अंदर समा गया। But the angel said to him, do not be afraid, Zechariah, your prayer has been heard। हालेलुया। जकराया को स्वर्गदूत आके क्या कहता है? मत डर, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, वो बहरा नहीं है, वो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। वो अपनी घड़ी और अपने कैलेंडर के अनुसार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। इसलिए हियाब बांध के प्रार्थना करते रहिए, आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। जैसे कई बार आता है ना, आप कतार में हैं, बने रहिए कृपया, आप कतार में हैं, पर गॉड इज वर्किंग, God is working on your miracle. There is something happening behind the curtain. When there is silence, don't assume that God isn't doing anything. He's doing something. Hallelujah. प्रभु कुछ कर रहे हैं। तो प्रभु ने मुझे नहीं मालूम इसकी किस एज में शादी हुई, लेकिन अब ये बूढ़ा हो रहा है, ऑलमोस्ट एज काफ़ी है। बड़े समय लिए प्रभु ने, अब बच्चा मांग रहे थे प्रभु से। प्रभु ने कहा, तो दूत ने कहा तेरी प्रार्थना सुनी गई है। और क्या लिखा है? योर वाइफ एलिजाबेथ विल बेयर यू ए सन एंड यू आर टू कॉल हिम जॉन। तो उसका नाम यूहन्ना रखना। ही विल बी ए जॉय एंड डिलाइट टू यू एंड मैनी विल रिजॉइस बिकॉज ऑफ हिज बर्थ, फॉर ही विल बी ग्रेट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। ही इज नेवर टू टेक वाइन और अदर फर्मेंटेड ड्रिंक। ही विल बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट इवन बिफोर ही इज बॉर्न। क्या कहता है? बड़ी खास बात है। स्वर्गदूत कहता है, ध्यान से सुनिए। स्वर्गदूत कहता है उसका नाम यूहन्ना रखना। वो एक बहुत बड़ा आनंद और खुशी होगा, किसके लिए? तुम्हारे लिए। हालेलुया। और क्या लिखा है? एंड मैनी विल रिजॉइस बिकॉज ऑफ हिज बर्थ। बहुत आनंदित होंगे उसके जन्म के कारण। फॉर ही विल बी ग्रेट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। किसकी नज़र में महान होगा? यहोवा परमेश्वर की नज़र में महान होगा। लेकिन लोगों की नज़र में महान नहीं था वो।
वो जंगल में था और टाट ओढ़ता था और लोकस्ट और हनी खाता था और अक्खड़ किस्म का नबी था और बहुत कड़वा प्रचार करता था। मोटिवेशनल प्रीचर नहीं था वो, उसका प्रचार बहुत सख्त था। उसका प्रचार था, जब उसके पास आए रोमन सोल्जर्स तो उनको क्या बोलता है? उनको बोलता है जो तुम्हें मिलता है उससे संतुष्ट रहो, किसी से घूस मत लो, रिश्वत मत लो, हरामकारी का पैसा मत लो। जरा सोचिए, अगर परमेश्वर जो नौकरी करते हैं, दूसरा काम करते हैं, उनको कहता है जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट रहो, तो क्या परमेश्वर यही पैगाम अपने सेवकों को नहीं देता? Find contentment and rejoicing in what God has given you. You know, always expect a greater, brighter, glorious future, but enjoy your moment that you are in. बहुत सारे लोग अपने उस लम्हे का आनंद नहीं लेते, आने वाले कल के लिए जोड़ते रहते हैं, बड़े यत्न करते रहते हैं और जो लम्हा उनके हाथ में होता है उसे खो देते हैं। तो लिखा है कि वो परमेश्वर की नज़र में महान होगा। शायद वो लोगों की नज़र में महान नहीं था, उसका सर काट दिया और प्लेटर पे रख के दे दिया गया। और क्या लिखा है? एंड विल बी, ही इज़ नॉट टू टेक एनी फर्मेंटेड ड्रिंक, ही विल बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट इवन बिफोर ही इज़ बॉर्न। वो अपने पैदा होने से पहले ही पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिया जाएगा। जब यीशु मसीह की माता मरियम, उसकी कोख में सृष्टि का तारणहार, सृष्टि का रचता प्रभु देह धार के आ चुका था और वो यूहन्ना की माता को मिलती है, जकरिया की बीवी को, तो वचन में लिखा बच्चा उसके पेट में उछलता है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो। लोग उछलते भी हैं भाई और बहनों जब पवित्र आत्मा आता है, अन्य भाषा बोलते हैं। इन्हें क्रेजी स्टफ मत कहिए। अपनी इंटेलेक्चुअल क्रिश्चियनिटी के कारण अन्य भाषा को बोलना और ये जो मैनिफेस्टेशन होती लोगों को, इन्हें स्टोन एज की एक्टिविटी मत बताइएगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी माँ की पेट में उछला, क्योंकि सृष्टि के तारणहार ने उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसकी माँ के पेट में ही दे दिया। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है? He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the parents to the children and the disobedient to the wisdom of righteousness, and to make ready a people prepared for the Lord. लोगों को तैयार करेगा किसके लिए? प्रभु के लिए, अपने लिए नहीं, अपना साम्राज्य, अपनी किंगडम बनाने के लिए नहीं, प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और जकरिया क्या कहता है? हाउ कैन आई बी श्योर ऑफ दिस? आई एम एन ओल्ड मैन एंड माई वाइफ इज वेल along in years. The angel said, I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. And you now will be silent and not able to speak until the day this happens, because you did not believe my words, which will come true at its appointed time. आपको मालूम, एंजल ने उसके अनबिलीफ को देख के गुस्सा आया एंजल को, और एंजल ने क्या बोला? गूंगा हो जाएगा तू, तब तक नहीं बोलेगा जब तक यूहन्ना पैदा ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि तू कोई और नकारात्मक शब्द बोले। और व्हेन योर वाइफ इज प्रेग्नेंट एंड द चाइल्ड इज ग्रोइंग इनसाइड, योर नेगेटिव वर्ड्स में इम्पैक्ट द अनबॉर्न बेबी। सो व्हाट द एंजल सेड, यू आर गोइंग टू बी डम हो जाएगा। और यूहन्ना का बाप बोला नहीं जब तक यूहन्ना पैदा नहीं हुआ। एंजल ऑफेंड होते हैं आपके अनबिलीफ से, अविश्वास से, क्योंकि एंजल फेथ में क्रिएट किए गए हैं, सिर्फ फेथ की लैंग्वेज समझते हैं। दे ओनली लिसन टू द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, और कुछ नहीं सुनते। वो प्रोग्राम्ड हैं वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा। आपको परमेश्वर का कलाम ही बोलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के कलाम में ही रहना पड़ेगा, इफ़ यू वॉन्ट एंजल्स टू बी ऑल अराउंड यू। हालेलुया। और तीसरी चीज़ आपको मालूम एंजल्स को क्या बहुत गुस्सा दिलाती है? पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील निकालें और उसका 5 अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 5 अध्याय, और पढ़िए, अपनी बाइबल खोलिएगा और यूहन्ना 5 उसके पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के पहले वचन से। सम टाइम लेटर जीसस वेंट अप टू जेरूसलम फॉर वन ऑफ द जूइश फेस्टिवल्स। नाउ देयर इज इन जेरूसलम नियर द शीप गेट पूल which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked, "Do you want to get well?" वचन में लिखा है कि बेथेस्दा का एक पूल है और उसके 5 ओसारे हैं। वहाँ पे एंजल आता है एक समय पे और पानी को हिलाता है। जब उस पानी में रिपल्स बनते हैं, जो भी व्यक्ति उसके अंदर कूदता है पूल में वो चंगा हो जाता है। यहाँ पे एक बंदा है 38 साल से यहीं पे है, और जो इनवैलिड वर्ड यहाँ पे लिखा है ग्रीक में, अगर आप उसे देखेंगे गहराई में जाके, उसका मतलब है कि उस व्यक्ति का ब्रेन चल रहा है, उसका हार्ट चल रहा है, उसके ऑर्गन काम कर रहे हैं, लेकिन उसका ऐसे है ना, उसके पाँव ना उसकी लातें, उसका बदन काम नहीं कर रहा, और गठरी की तरह है, जैसे गठरी होती बंदी उसकी तरह वो वहाँ है 38 साल से। और हर साल ये व्यक्ति कोशिश करता है, शायद किसी एक कॉलोनेड में है, कोशिश करके आता है पानी में जाने के लिए, लेकिन इससे पहले, क्योंकि ये इसकी लाइफ नहीं है इसके अंदर, इससे पहले कि अपने आप को पानी में गिरा पाए, कोई और अपने पेशेंट को पानी में गिर देता है। हर साल ये आशा रखता है कि इस बार मैं चंगा हो जाऊंगा। हर साल इसकी आशा टूट जाती है। आपको मालूम, इस व्यक्ति को 38 साल का तजर्बा है। इसे पता है कितना, कौन सा मून होता है, फुल मून होता है, कौन सी पोजीशन में मून होता है, कौन सी ऋतु होती है, कौन सी डायरेक्शन से हवा चलती है जब एंजल आता है। ये पहले तैयारी करता है, लेकिन ऐसे घिसर घिसर के आगे जाता है, लेकिन कोई और चंगाई लेके चला जाता है। हर साल इसकी आशा टूटती है, लेकिन हर साल अपनी आशा बांधता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने 37 मिरेकल होते देखे वहाँ पे, 37 मिरेकल्स, और इसका कोई नहीं है। एवरीबॉडी अबैंडन्ड हिम, देयर इज नो वन। तो यीशु मसीह आके इस व्यक्ति के पास जाके क्या कहते हैं? स्ट्रेंज बात, डू यू वॉन्ट टू गेट वेल? I sense in my spirit there was some kind of anger in the tone of the Lord. Do you want to get well? मतलब एक ऐसे व्यक्ति को ऐसा कहना, मैं आगे बताता हूँ आपको। Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when water is stirred while I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. बड़ी दुख भरी दास्तां है इसकी। This man has a victim story. Very tragic and painful story. He has no one to take care of him. When the angel has caused whirlpool in the water after stirring it, this man has already been for several weeks trying to make in to reach to the pool, but somebody else drops his diseased person and that person gets healed. तो कितनी दुख भरी इसकी दास्तान है इस व्यक्ति की। पिट्टी पार्टी करना चाहता है यीशु मसीह के साथ। आपको मालूम, बहुत सारे मसीह लोग पिट्टी पार्टी करना चाहते हैं। आपको शोल्डर चाहिए क्राई करने के लिए। यीशु मसीह पृथ्वी पे पिट्टी पार्टी करने नहीं आया। अगर आप कहते हो ना, ही इज़ वंडरफुल काउंसलर, दैट डजंट मीन दैट ही इज़ कम टू हैव पिट्टी पार्टी विद यू। जीसस मूव्स इनटू योर मेस, इनटू योर एब्सोल्युटली डार्क सिचुएशन एंड ही टर्न्स अराउंड। हालेलुया। यीशु मसीह कहता, तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। उसकी पिट्टी पार्टी नहीं सुनता यीशु मसीह। एट वंस द मैन वॉज क्योर्ड, उसी समय व्यक्ति चंगा हो गया। यीशु मसीह क्या कहते हैं? गेट अप, पिक अप योर मैट एंड वॉक। यीशु मसीह कहते हैं, उठ और तेरा वो जो बिस्तरा है उसे उठा और चल। आपने कभी सोचा क्यों यीशु मसीह ने कहा कि अपना वो सामान उठा के चल? इसकी एक वजह है। जीसस सेड पिक अप योर मैट एंड वॉक। शायद लकड़ी का वुडन कोई चीज़ बनाई है, वो सब कुछ लेके चल और वॉक कर। इसकी आपको बाद में मिलेगी, आगे पढ़िएगा इसको अपने घर में आप। मैं अभी पढ़ देता हूँ 14 वर्स। 14 वचन में लिखा है, लेटर जीसस फाउंड हिम एट द टेम्पल। ये यीशु मसीह को कहाँ मिला बाद में? यहोवा के भवन में। जीसस मेट हिम, जीसस फाउंड हिम, लेटर जीसस फाउंड हिम एट द टेम्पल एंड सेड टू हिम। और यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं? सी यू आर वेल अगेन, स्टॉप सिनिंग। अब आप सोचेंगे
कि ये व्यक्ति जो बिल्कुल इनवैलिड है, जिसकी टांगें नहीं चल रही, पाँव नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहा, ये क्या पाप कर रहा होगा? यीशु मसीह झूठ नहीं कह रहे। दिस मैन वॉज सिक बिकॉज ही वॉज सिनिंग अगेंस्ट द लॉर्ड। उसकी पाप और बदकारी के कारण उसकी ये दशा हुई थी। और यीशु मसीह उसे क्या कहते हैं? सिन नो मोर और समथिंग वर्स में हैपन टू यू। हालेलुया। अगर तू बदकारी करेगा तो तेरे ऊपर इससे भी बुरी कोई चीज आ जाएगी। आपको मालूम है एंजल्स को सिन ऑफेंड करता है। एंजल्स परसीव्ड, लुक्ड एट दैट मैन्स लाइफ, ही वॉज नॉट क्लीन, ही वॉज नॉट, इतनी बुरी दशा में होने के बावजूद भी वो ब्रोकन नहीं था प्रभु के आगे, टूटा बर्तन नहीं था। पिटी पार्टी जरूर कर रहा था पर अंदर से सचमुच टूटा नहीं था प्रभु के आगे। लेकिन यीशु मसीह उस पर दया करते हैं। और उस व्यक्ति की अच्छी चिन्ह क्या है कि वो कहाँ जाता है चंगाई लेने के बाद? कहाँ मिलता है प्रभु को? यहोवा की हैकल में। तो प्रभु उसे वार्निंग देते हैं, दोबारा वो गंदा काम मत करना। बहुत से लोग बीमार हैं क्योंकि पाप है उनके जीवन में, बदकारी है उनके जीवन में। और बदकारी, पाप, जनाकारी, हरामकारी के जो सीड हैं वो बीमारी बन के फूट निकले हैं। इसलिए यीशु मसीह के चरणों में पश्चाताप कीजिए, तौबा कीजिए। हालेलुया। और चौथी चीज, बड़ी ज़बरदस्त बात आपको बताने लगा हूँ, जो स्वर्गदूत को बहुत गुस्सा देती है। पढ़िए जल्दी से गिनती की पुस्तक, उसका 20 अध्याय। गिनती की पुस्तक उसका 20 अध्याय, नंबर्स चैप्टर नंबर 20। गिनती की पुस्तक निकालिए, उसका 20 अध्याय। और मैं शॉर्ट में ही पढ़ूंगा, उसके 10 वचन से मैं पढ़ता हूँ, 9 से पढ़ता हूँ। गिनती की पुस्तक 20 अध्याय के 9 वचन से। सो मोजेस टुक द स्टाफ फ्रॉम द लॉर्ड्स प्रेजेंस जस्ट एज ही कमेंडेड हिम। He and Aaron gathered the assembly together in front of the rock, and Moses said to them, प्रभु कदेश बर्निया की बात है। ये बिल्कुल कनान के पास पहुंच गए हैं। कदेश बर्निया लास्ट पोर्ट है, इसके बाद ये लैंड ऑफ प्रॉमिस में घुस जाएंगे। लेकिन इनको पानी चाहिए, पानी नहीं है। और सारी जो असेंबली है वो कुड़कुड़ा रही है और बुड़बुड़ा रही है। बट इसका 6 वचन पढ़ देता हूँ। मोजेस एंड एरन वेंट फ्रॉम द असेंबली to the entrance of the tent of the meeting and fell face down, and the glory of the Lord appeared to them. The Lord said to Moses, take the staff, and you and your brother Aaron gather the assembly together, speak to that rock. यहोवा ने कहा जाके चट्टान से क्या करना? बातें करना। हालेलुया। तो मूसा गया, उसने स्टाफ लिया और he and Aaron gathered the assembly together in front of the rock. And Moses said to them, मूसा ने उनसे क्या कहा? Listen, you rebels, must we bring you water out of this rock? मूसा और मूसा का भाई हारून गए और इज़राइल के सारे लोग खड़े थे। और मूसा वहां पे क्या कहता उनको? तुम, कहता, बलवा करने वाले लोगों, क्या हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आए? मूसा की टोन ही बदल गई, शायद इसका डिमीनर चेंज हो गया मूसा का, और कहता हम तुम्हारे लिए पानी लाएं। देन मोजेस रेज्ड हिज आर्म एंड स्ट्रक द रॉक ट्वाइस विद हिज स्टाफ। वाटर गश्ड आउट एंड द कम्युनिटी एंड देयर लाइवस्टॉक ड्रैंक। मूसा और मूसा का भाई दोनों हाथ उठा के घमंड से इसराइलियों को कह रहे हैं कि क्या हम तुम्हारे लिए पानी निकाल के लाएं? और उसने चट्टान को क्या किया? 2 बार मारा। प्रभु ने क्या बोला था? क्या बोला था प्रभु ने? 8 वचन में, टेक द स्टाफ and you and your brother Aaron gather the assembly together, speak to the rock before their eyes, and it will pour out its water. यहोवा पिता ने कहा था चट्टान से बोलना। मूसा ने एक बार पहले भी चट्टान को मारा था। अब मूसा के अंदर घमंड आया। हालेलुया। और मूसा ने परमेश्वर के जलाल को रख लिया, परमेश्वर की महिमा को अपनी तरफ खींच लिया। हम तुम्हारे लिए पानी लाएं। पानी तो आ गया, चट्टान को 2 बार मारा, लेकिन यीशु मसीह को 2 बार घाव खाने पड़े। उसको पीठ पे कोड़ों की मार खानी पड़ी और उसको क्रूस पे जान देनी पड़ी, क्योंकि मोजेस स्ट्रक हिम ट्वाइस। और आपको मालूम, मूसा के इस अपराध के कारण यहोवा परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? तू कनान देश में जाने ना पाएगा,
क्यों कहा प्रभु ने? प्रभु ने कहा क्योंकि तुमने मुझे बनी इसराइल के आगे महिमा नहीं दी, मेरे नाम को लोगों के आगे ऊंचा नहीं किया, बल्कि अपने आप की बड़ाई की। जरा सोचें, बहुत से वो सेवक जो अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा बना के बताते हैं, पापा हैं, डैडी हैं, हमें अधिकार मिला, सबको नहीं मिला, आप हमें कह सकते हो पापा। ऐसी सी जो बातें करते हैं, जरा सोचें इस संदर्भ में कि मोसेस की छोटी सी गलती के कारण यहोवा परमेश्वर ने उसे कनान में नहीं जाने दिया। एंजल, खुदा की हजूरी का एंजल क्रोध में आ गया। हालेलुया। क्योंकि एंजल्स जो हैं उनको प्राइड पसंद नहीं है। जब कोई यहोवा की ग्लोरी चोरी करता है, एंजल्स को वो पसंद नहीं है। यू पुट ऑफ योर एंजल्स व्हेन यू स्टील द ग्लोरी ऑफ गॉड। The angels cherish you. The angels admire you. The angels long to be around you as long as you continue to give glory to God. You continue to tell people, I am nothing, and truly I am absolutely nothing. Hallelujah. अब आप वचन पढ़ लीजिएगा, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय का 6 वचन पढ़ लीजिएगा। निर्गमन 17 का 6, और ये 20 अध्याय में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं इसका आपको एक तो वचन और पढ़ देता हूँ। इसका मैं पढ़ता हूँ 22 वर्स से पढ़ता हूँ आपके लिए। Then whole Israelite community set out from Kadesh and came to Mount Hor. At Mount Hor, near the border of Edom, the Lord said to Moses and Aaron, Aaron will be gathered to his people. He will not enter the land I gave the Israelite, because both of you rebelled against my command at the waters of Meribah. Get Aaron and his son Eleazar and take them up on Mount Hor. Remove Aaron's garment. आपको मालूम, मैंने एक दिन आपको प्रचार में बताया, एरन को जो गारमेंट पहनाए थे यहोवा ने, सबसे पहले विजडम वर्ड वहाँ पे यूज़ हुआ है। व्हेन द गारमेंट ऑफ एरन वर बीइंग मेड, जो एरन का गारमेंट है वो एक डिवाइन टेक्नोलॉजिकल डिवाइस था। जब तक एरन पहने रखता, ही कुडंट हैव डाइड, ही वुड हैव रिमेन्ड इनविंसिबल, डेथ कुडंट टच हिम। मौत हारून को छू ना पाती जब तक वो ड्रेस पहने रखता हारून। इसमें बड़ा भेद है, फिर किसी समय हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो लिखा है कि वो रिमूव कर एंड पुट देम ऑन हिज सन एलियाजर, फॉर एरन विल बी गैदर्ड to his people and he will die there. Moses did as the Lord commanded and they went up on Mount Hor in the sight of the whole. प्रभु ने मूसा को और उसके भाई को कनान में जाने नहीं दिया, क्योंकि एंजल, उसने प्रभु को ग्लोरी नहीं दी, जलाल नहीं दिया, एंड एंजल डिडंट लाइक इट। हालेलुया। जब आप प्रभु को जलाल नहीं ना देते, अपने आप को डिंगे मारते हो, शेखी की बातें करते हो, अपने आप को बहुत, अक्सर क्रिश्चियन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो इतने होते हैं, अपने आप को इतना और इससे भी ज़्यादा बड़ा बताते हैं, ओवर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को। इस वजह से एंजल्स लीव अ मैन हु ब्रैग्स, अ मैन हु थिंक्स टू बिग अबाउट हिमसेल्फ। द एंजल्स डोंट लाइक नार्सिसिज्म, they perceive a man as narcissistic. He is all about I, my, me, I, my, me, I, मैं। उसके पास स्वर्गदूत नहीं जाते कभी। ध्यान रखिएगा, केवल यहोवा को जलाल दीजिएगा, अपनी ओर मत जलाल खींचिएगा। जब कोई आपकी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, उसी समय उसको यीशु मसीह को दे दीजिए, रखिए मत अपने पास, वो डेंजरस होगी आपके लिए। उसी समय सबके सामने पब्लिकली, प्रभु कोई भैया हम कुछ नहीं, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। पांचवी चीज़ जो एंजल्स को भगाती है आपके इर्द गिर्द से, वो है आपकी डिसोबीडियंस। गिनती की ही पुस्तक, इसका 22 अध्याय निकालें जल्दी से, 22 चैप्टर, गिनती की ही पुस्तक 22 अध्याय, और मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूँ, मैं 22 वचन से पढ़ना चाहता हूँ। गिनती 22 के 22 से पढ़िए। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय का 22 वचन, यहाँ लिखा है, बट गॉड वॉज एंग्री व्हेन ही वेंट and the angel of the Lord stood in the road to oppose him. ये बलाम नाम के एक नबी की बात हो रही, झूठे नबी की। झूठा क्यों है? क्योंकि इससे यहोवा बातें करता जरूर है, लेकिन ये शैतानी काम भी करता है। हालेलुया। और बलाम की मौत बहुत बुरी हुई अंत में। ये पैसे के लिए नबूवतें करता है,
ये भी बलाक के लिए जैसे करते हैं ना, प्रोफेसर पापा, वही बंदा है ये भी। तो वचन में क्या लिखा है, प्रभु इससे बहुत क्रोधित है। वैन ही वेंट, जब वो गया नबूवत करने के लिए, प्रभु ने रोका है, वो गया क्योंकि पैसा मिल रहा है। द एंजल ऑफ द लॉर्ड स्टूड इन द रोड टू अपोज हिम। रस्ते में कौन खड़ा हो गया आके, यहोवा का दूत, उसका विरोध करने के लिए। बेलम वॉज राइडिंग हिज डंकी एंड हिज 2 सर्वेंट्स वर विद हिम। बॉडीगार्ड भी थे, जैसे आज के कई झूठे नबियों और उनके है ना, उसके इसके भी थे बॉडीगार्ड संग में, उसके संग थे। वैन द डंकी, अब देख लीजिए, एलिया एलीशा के नहीं थे, एलिया एलीशा के संग चेले थे, हालेलुया। लेकिन इसके संग क्या है, सर्वेंट्स हैं। लिखा है बेलम वॉज राइडिंग हिज डंकी एंड 2 of his servants were with him. When the donkey saw the angel of the Lord standing in the road with a drawn sword in his hand, it turned off the road into a field. गधी ने देखा कि सामने यहोवा का दूत खड़ा है और दूत ने तलवार नंगी ली हुई है, तो गधी डर के मारे खेत खलियान में घुस गई। बेलम बीट इट एंड गेट इट बैक ऑन द रोड। बलाम ने मारा गधी को और दोबारा रोड के ऊपर ले आया। The angel of the Lord stood in the narrow path through the vineyards with walls on both sides. When the donkey saw the angel of the Lord, it pressed close to the wall, crushing Balaam's foot against it. So he beat the donkey again. बिलाम जिस गधी के ऊपर बैठा है, उस गधी को यहोवा का दूत दिखता है, और जो गधी के ऊपर बिलाम नामक गधा नबी बैठा है, उसे यहोवा का दूत नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि इस झूठे नबी की आंख पे दौलत की पट्टी बंधी हुई है। समझ रहे हैं आप? पैसे के लिए नबूवत करते हो आप, पर्सनल इंडिविजुअल प्रोफेसीज बना बना के सेल करते हो आप लोग, झूठे हो आप, क्योंकि आपकी नबूवतें पृथ्वी पे गिर रही हैं बिना पूरे हुए। एंड गॉड ऑफ इजराइल इज सिक विद योर प्रोफेसीज, ही इज पेइंग नो हीड टू योर प्रोफेसीज, ही इज सेइंग रिपेंट or else I will come in my anger and smite you. Turn to him and repent. Hallelujah. ये नबी अपने आप को कहलाते, इनको मालूम ही नहीं है। जशाया, जर्मिया, जोएल, अमोस, उबदाया, जोना, माइका, नहूम, हबक्कुक, मलाकाय, जपनाय, जकराया, हग्गाय, मलाकाय, ये क्या क्या नबूवतें इन्होंने की हैं कलाम में। एलिया ने, अलीशा ने, क्या उनकी भविष्यवाणियाँ हैं, समझते हैं उनको, डिसाइफर किया उनको आपने। वो हमारे बाप दादे हैं। नबी बनने के लिए उन बाप दादाओं से शिक्षा लेनी पड़ेगी पहले। हालेलुया। तो वचन में लिखा है कि इसने गधी को फिर मारा। दी एंजल ऑफ द लॉर्ड मूव्ड अहेड एंड स्टूड इन द नैरो प्लेस वेयर देयर वाज नो रूम टू टर्न ईदर टू द राइट और लेफ्ट। व्हेन द डंकी सॉ द एंजल ऑफ द लॉर्ड, इट ले डाउन अंडर बेलम एंड ही वाज एंग्री एंड बीट इट विद हिज स्टाफ। देन द लॉर्ड ओपन डंकीज माउथ। यहोवा भी वहीं है, और ये एंजल बड़ा ख़ास एंजल है, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था। और यहोवा ने उसका मुंह खोला, और वचन में क्या लिखा है, एंड इट सेड टू बेलम, व्हाट हैव आई डन टू यू टू मेक यू बीट मी दीज 3 times? 3 बार तूने मुझे क्यों मारा? बेलम आंसर्ड द डंकी, यू हैव मेड अ फूल ऑफ मी। इफ ओनली आई हैड ए sword in my hand, I would kill you right now. The donkey said to Balaam, am I not your donkey, which you have always ridden? To this day have I been in the habit of doing this to you? No, he said. Then the angel of the Lord opened Balaam's eyes. तब आंखें खोली किसकी? यहोवा ने, इस झूठे नबी की, जो पैसे के लिए नबूवत करता है। यहोवा का दूत डिसोबीडियंस को देख के छोड़ जाता है। नबियों को छोड़ गया जो पैसे के लालच में नबूवत कर रहे हैं। एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड इज अपसेट एंड एंग्री। हालेलुया। देख रहे हैं आप, बातें करने वाली गधी कभी देखी आपने? और आंख से अंधा नबी देखा कभी आपने, जिसे पैसे के लोभ ने और संसारिक मटीरियल चीज़ों के लालच ने अंधा किया है? हालेलुया। वचन क्या बताता है? वचन कहता है लेट्स कन्फेस, हम अंगीकार करें, फिर पश्चाताप करें और प्रभु से क्षमा मांगें। प्रभु से कहें, प्रभु फरिश्तों की दुनिया के लिए मेरी आंखें खोल, मेरे हृदय को शुद्ध कर,
ताकि मैं तेरे स्वर्गदूतों को देखूं। आप स्वर्गदूतों को देख सकते हैं। आप स्वर्गदूतों के साथ अपनी लाइफ को अलाइनमेंट में लाके प्रभु के लिए काम कर सकते हैं, और सेवरल मिलियन टाइम्स बेटर इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ का अगर आप ये सीक्रेट ढूंढें यहोवा के कलाम में से। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। Lord, we bless your name. We praise you, Lord. Open our eyes to the angelic world. May we learn, may we discern, Father, may we receive wisdom from you, and may we apply wisdom as to how we walk. Since there are thousands upon thousands of angels, Lord God, that you created. And there are angels that long to encamp around us. There are warring angels. There are angels that bring healing. There are angels that are assigned to the treasury of the Lord to bring wealth to God's people. There are angels who dispense miracles. There are angels who assist in healing. There are different kinds of angels that you created, Father God. Open our eyes to discover that glorious world. Hallelujah. May we work in harmony and in alignment with the angels. प्रभु एक एक भाई बहन की आंखें खोल, बुद्धि खोल, तेरे कलाम का ज्ञान दे, प्रकाश दे, स्वर्गदूतों को समझने का, ये स्पिरिट बीइंग है, स्पिरिट वर्ल्ड को समझने का, आत्मा की दुनिया को समझने का, और आत्मा की दुनिया के जो लोग हैं, एंजेलिक होस्ट हैं, हालेलुया। प्रभु जाने कितनी डिमेंशंस हैं फरिश्तों की। हु आर द लिविंग बीइंग्स लॉर्ड, दैट योर पीपल मे नो हु आर द लिविंग बीइंग्स, that they may know, Father, who are the 7 archangels, that they may know who are Ophanim, that they may know who are cherubims, that they may know who are cherubims, that they may know who are powers and principalities and authorities, that they may know, Father God, who are different angels, angelic host, ताकि हम उन्हें जाने। हालेलुया। तूने उन्हें बनाया है ताकि प्रभु वो उनकी सेवा करें जो साल्वेशन को इनहेरिट करेंगे। एक एक जन पे मैं तेरे लहू को छिड़कता हूँ। बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को इन अंत के दिनों में खोलिए प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह के जलाली नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज शाम को भी शॉर्ट मैसेज के लिए हम फिर इकट्ठे होंगे, परहैप्स 6 और 6:30। आई लेट यू नो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करते रहिए, वचन मनन करते रहिए और भलाई करते रहिए अपने इर्द गिर्द। यू नो, look for people who are needy. Just make difference in their lives. हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में आमीन।